Hello everyone. This is my second video in the series of previous year papers of UKPSC AE that I am solving on my YouTube channel. आशा करता हूँ आप सभी लोगों की UKPSC AE की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से लेस देन 40 डेज़ रिमेनिंग है जब आपका UKPSC AE का पेपर शुरू होगा। और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं यूकेपीएससी के, अभी तक यूकेपीएससी एई का एग्ज़ाम 4 बार हुआ है। 2007 में हुआ है, 12 में हुआ है, 13 में एंड 2021 जिसका री एग्ज़ाम अब आप लोग देने जा रहे हैं अभी अगस्त 2023 में। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूकेपीएससी एई के, उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर करें। एंड आई कैन टेल यू विद श्योरिटी दैट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कम अगर आप 4 बार के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड आपके पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, बी इट योर जनरल स्टडीज़ पेपर और योर टेक्निकल पेपर और वॉट एवर इट इज़। इसलिए आपको जनरल स्टडीज़ के PYQ तो करके जाने ही है, बिकॉज दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पेपर जहाँ से आप एक लीड ले सकते हैं। टेक्निकल में तो काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका अच्छा है वो करेंगे ही, बट जनरल स्टडीज़ पेपर में कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स रुक जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा आपके पास एज लेने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप अच्छे से कुछ दिन के लिए इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आपका 2012 का 2012 का जनरल स्टडीज़ का पेपर। एंड जब मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बारे में मुझे लगता है क्वेश्चंस आ सकता है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2012 जनरल स्टडीज़ पेपर की। पहला क्वेश्चन था, वेयर इज़ द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोनार्क लोकेटेड? सो दिस इज़ लोकेटेड इन योर ओडिशा। In which dynasty the decimal system was introduced? So this was introduced in the Gupta dynasty, option B. During the reign of Harsha, which educational center was most famous? This is your Nalanda, which is option B. Moving on to the next question. This is from which place of Uttarakhand the Ashokan rock edict is reported? So Ashokan rock edicts are reported from your Kalsi pillar inscriptions, which is located in which district? District भी आपको पता होना चाहिए. It is located in Dehradun district of Uttarakhand. All right. The famous rock cut Kailash temple is situated at, famous rock cut Kailash temple is situated in Ellora, and this was built by which dynasty ruler? राष्ट्रकूटा. ठीक है, राष्ट्रकूटा इज द डायनेस्टी. एंड कौन रूलर था जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करा? रूलर का नाम भी आपको पता होना चाहिए. हु कंस्ट्रक्टेड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा? द नेम ऑफ द रूलर इज कृष्णा द फर्स्ट, ओके, ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. This also you should remember. Next question is, who was the founder of Nanda dynasty in ancient India? This is Mahapadmananda, option B. Where is the Vijay Stambh situated? This is in Chittorgarh. The name of Akbar's mother was Hambida Banu, which is option A. The Shiva temple at Thanjavur was built by, this was built by Cholas. Another temple which was built by them is the Brihadeshwara temple. And moving on to the next question, which is question 10. Which Mughal ruler started the Mansabdari system in India? This is Akbar. Mansabdari system is very very important. एक और system था ज़ब्त system, ZABT. This was also introduced by Akbar. Mansabdari system में दो तरीके के system होते थे, एक ज़ाट system होता था and एक सवार system होता था, SAWAR. ये भी आपको याद रखना है. This was part of Mansabdari system. All right. Moving on to the next question, where is the tomb of Humayun located? Humayun's tomb is located in Delhi. Next is the author of the book Mother India. This is Catherine Mayo, which is option A. Next question, question number 13. When did British government took India under its control from the East India Company? This is your 1858 AD when Queen Victoria's proclamation was held. And आपको पता होना चाहिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था जिसमें अलग अलग रीजन से अलग अलग लीडर आगे आए थे. एंड इट वाज अंडर द कमांड ऑफ आर लास्ट मुगल एम्पर, आई वुड से बहादुर शाह जफर. And after the Sepoy Mutiny by the Queen Victoria's Declaration of 1858, the first Viceroy of India was appointed, and the name of first Viceroy of India is Lord Canning. This also you should remember, Lord Canning. All right. Next question is, the author of the book Unhappy India was Lala Lajpat Rai. Shravan Belagola is associated with. This is associated with Jainism, and Shravan Belagola, this is where Chandragupta Maurya during his last days went, wherein he accepted the Jain religion. In which state is the Pavanar Ashram of Vinoba Bhave situated? This is in your Maharashtra, which is option B. Next question, which of the following American journalists accompanied Mahatma Gandhi during Quit India movement? So this is your क्विट इंडिया. ये देख लेना मूवमेंट कौन सा है, क्विट इंडिया. दिस इज़ योर लुइस फिशर. अगर यहाँ पे क्विट इंडिया की जगह वो पूछ लेता डांडी मार्च, तो डांडी मार्च में गांधी जी को
किसने अकम्पनी किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, लुइस फिशर ने इसका आंसर होता। दांडी मार्च में अकम्पनी करा था वेब मिलर ने, ही वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। सो दो अलग अलग मूवमेंट है, क्विट इंडिया में लुइस फिशर एंड दांडी मार्च में आपका वेब मिलर। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम ऑन 12th March 1930, which is also you're known as the civil disobedience movement, and it lasted for 24 days, and finally Gandhi ji reached, and there he broke the salt laws by taking a pinch of salt। ठीक है, 24 दिन तक आपका ये सॉल्ट सत्याग्रह चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च 12th March 1930 से स्टार्ट हुआ था, एंड दिस वाज कवर्ड बाय वेब मिलर। ऐसे ही जो यहाँ पे पूछा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, लुइस फिशर ने कवर करा था। एक जो टैगलाइन इस मूवमेंट की थी वो था डू और डाई। एक एक सीक्रेट रेडियो सर्विस भी एक जो लेडी थी उन्होंने चलाई थी, एंड द नेम ऑफ द लेडी वॉज उषा मेहता। उषा मेहता इज़ योर लेडी विच इज़ रिलेटेड टू योर क्विट इंडिया मूवमेंट। यू शुड रिमेंबर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ सीक्रेट ऑल अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस। ऑलराइट, सो दिस नेम इज ऑल्सो important. Moving on to the next question, who among the following was the founder of the Gadar party? This was Lala Hardayal, option A. Where did Swami Vivekananda attend the World Parliament of Religion in 1893? This is Chicago. Now see, through this question I'll tell you the relevance of previous year questions of UKPSC. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कहाँ हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि स्वामी विवेकानंद ने अटेंड करी थी। क्या पता नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछ ले, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो आंसर हो जाएगा आपका 1893। ऐसी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन जो फाउंड करा था, दैट वाज फाउंडेड बाय हिम इन विच ईयर, सो दैट वाज फाउंडेड बाय हिम इन द ईयर 1897। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। Next is, who was the viceroy at the time of Jallianwala Bagh massacre? This was your Lord Chelmsford. All right. Next is India's third research station in Antarctica. This is Bharti. First was Dakshin Gangotri, second was Maitri, and the third is Bharti. Earth Hour 2012, ये तो उस टाइम का क्वेश्चन है, आई एम स्किपिंग दिस, बट लेट मी टेल यू, अर्थ आर इन 2023 इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 25th March। ऑलराइट, ये डेट याद कर लो, 2023 में रिसेंटली अभी 25 मार्च को ये सेलिब्रेट हुआ था। Lokpal Bill was first introduced in Lok Sabha in the year 1968. Who propounded the idea of total revolution in Indian politics? This is Jaiprakash Narayan. Which article is related to Election Commission of India? Election Commission is Article 324. ऐसे ही फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करने हैं। फॉर एग्जांपल ये भी पूछ लेते हैं कि कैबिनेट वर्ड आपका कौन से आर्टिकल में लिस्टेड है। एक रिसेंट पेपर में इन्होंने पूछा है, दिस इज़ 352 आर्टिकल के अंदर ये लिस्टेड है। सो इंपॉर्टेंट पावर है। फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ द गवर्नर टू इशू एन ऑर्डिनेंस, ये आपकी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ अंडर आर्टिकल 213। ऐसे जो हैं, फिर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस, दिस इज़ 1, 2, 3 आर्टिकल 123। तो ये सब आपको पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। So that is also you should make a list, or I can also cover on my YouTube channel if you want. Do tell me in the comment section. Moving on to the next question, which is question number 26. Which schedule of the Indian Constitution is related to the powers and composition of the panchayats? Now पंचायत के बारे में बात हो रही है, तो this is your 11th schedule, and अगर municipalities की मैं बात करूँ, then municipalities is 12th schedule. Now your panchayats, they were added by the 73rd Constitutional Amendment Act, and अगर मैं municipalities की बात करूँ तो municipalities were added to the 12th schedule by the 74th Constitutional Amendment Act। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने। एंड एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो 11th शेड्यूल है पंचायत का, उसमें 29 आइटम्स हैं टोटल। ओके, 29 आइटम्स। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो केयरफुली, दैट जो 12th शेड्यूल है उसमें कितने आइटम्स हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 12th शेड्यूल। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, देयर आर 29 आइटम्स इन द 11th शेड्यूल। Moving on to the next question, who among the following has described the Indian Constitution as quasi federal? This is KC Veere। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बेटर यू स्किप दिस क्वेश्चन और टेक अ गेस इफ़ यू रियली वांट टू अटेम्प्ट इट। If you go on looking for the source of such questions, then you're just merely wasting your time, so no point. Article 32 of the Indian Constitution, this is your comes under fundamental rights. Fundamental rights are covered under part 3 of the Indian Constitution, and they have been borrowed from the US Bill of Rights। ठीक है, 32 article is your right of constitutional remedies, and it has also been referred to as heart and soul of Indian Constitution by B.R. Ambedkar। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन था, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, दिस इज योर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज बिफोर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेक्युलर वॉज यूज्ड? दिस इज योर 25(1), विच इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन एंड देन द हेडक्वार्टर्स इज गिवन। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर वो हर एग्जाम में यूकेपीएससी पूछता है, इनका फेवरेट है।
वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस दे देंगे एंड आपके हेडक्वार्टर सामने दे देंगे, यू हैव टू मैच, और दिल जस्ट आस्क बेसिकली दैट यूनेस्को के कहाँ हैं, WHO के कहाँ हैं, ILO के कहाँ हैं. सो लेट्स सी हियर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नो वॉशिंगटन नहीं, इनके तो हेग नीदरलैंड्स में है, दिस इज रॉन्ग. वर्ल्ड बैंक, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वर्ल्ड बैंक के वॉशिंगटन DC में है. यूनेस्को, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स आपके पेरिस में है. WHO जेनेवा, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड जेनेवा में ही आपके ILO इंटरनेशनल लेबर यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी लोकेटेड हैं. इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हो गई, WTO हो गई, ILO हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब के फाउंडिंग एयर्स भी आप याद करके जाएं बिकॉज एक या दो क्वेश्चन इस पे जरूर आपके GS पेपर में पूछे जाएंगे. सो कीप दैट इन माइंड. Next question is, which of the following is correctly matched? Writ of habeas corpus is issued only to the state. Writ of mandamus issued to the public servant. Writ of quo warranto issued to subordinate courts. Writ of prohibition issued to private individuals. This is your answer is writ of mandamus issued to the public servant. Next is सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. देखिए बहुत स्मार्टनेस से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट लोकसभा स्पीकर सबको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ GS पेपर. वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन. फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इज योर GV मावलंकर. A मैचेस टू 3. अपना टाइम वेस्ट मत करो, सीधे देखो A पे कहाँ है. ए इज़ 3 इन ऑप्शन A विच इज़ योर आंसर नाउ बिकॉज और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें मैचिंग बैठ रही है, तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन A. Next is your question number 33. The 50th anniversary of Universal Declaration of Human Rights was observed on. Now you should know that the Universal Declaration of Human Rights came into being on 10th December 1948. अब इसमें 50 साल जोड़ दो, 50 साल कब हो रहे हैं इसमें, 50 जोड़ दो यहाँ पे, 98, 10 December 1998 will be your answer which is option C. Next is how many states and UTs in India? As of now presently मैं आपको बता देता हूँ 28 states and 8 union territories are there. All right. Next, moving on to the next question, the word Satyamev Jayate inscribed below is in Mundaga Upanishad. Right to Information Act was enacted in the year 2005. Which of the following is not an office of profit under the Indian Constitution? This is members of the Union and State, ministers of the Union and State governments. Which of the following is not correct? United Nations was established on 24th October 1945. This is absolutely correct because UN Day is celebrated on 24th October. The Security Council of UN is composed of 10 non-permanent members and 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके, इस एक्रोनिम से आप याद कर लो, ABCFR. ऑल राइट, इस एक्रोनिम से आप याद कर लो ABCFR. एंड व्हाट डज दिस रिलेट टू, यू शुड नो ABCFR. लेट मी राइट इट अगेन. A is America, B is Britain, C is China, F is France, R is Russian. All right, Russia. So these are the 5 permanent members of UN Security Council. Official language of UN is German. No, there are 6 official languages. So this is not correct. Not correct पूछा था तो answer will be C. At present, this keeps on changing. I don't know what is the current strength. You don't need to keep it in mind. But official languages and permanent members जो 5 हैं, ये आपको याद रखने. 5 permanent members of UN Security Council and 6 official languages. This you should keep in mind. List of organizations and their founders. Yes, Servants of Indian Society, Gopal Krishna Gokhale, correct. Deccan Education Society, Vishnu Shastri Chiplunker, absolutely correct. Muslim League, no. मोहम्मद अली जिन्ना इसके फाउंडर नहीं थे. 1906 में कहाँ फाउंड हुई थी मुस्लिम लीग? ढाका में, विच वॉज देन नोन एज ढाका बाय नवाब सलीमुल्ला. नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला ने इसको फाउंड करा था. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट व्हेन दे से दैट इट वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ऑल्सो प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल गलत है. दयानंद सरस्वती तो आपको 1975 में आर्य समाज फाउंड किया था. प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड इन 1967 बाय आत्माराम पांडुरंग. आत्माराम पांडुरंग ने इनको फाउंड करा था प्रार्थना समाज को 1967 में. ऑल राइट. सो ये आपके दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने उस टाइम पे डिलीट कर दिया होगा. इन विच लैंड ऑफ इंडियन ओशन द US नेवल बेस इज लोकेटेड? दिस इज डिएगो गार्सिया. Unit of natural selection is a species, which is your option C. Next is, which of the following macromolecules is a protein? This is keratin. Cotton fiber from cotton plant is obtained from seed coats, which is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भोपाल गैस ट्रेजेडी. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है. अभी मैंने कल ही 2007 का GS पेपर सॉल्व किया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था. मिथाइल आइसोसाइनेट इज द आंसर. एंड व्हेन डिड दिस ट्रेजेडी हैपन? 2nd and 3rd December 1984. कभी भी फिर से पूछ सकते हैं, मस्ट कीप इन माइंड. Next is the name of the paper published by M.K. Gandhi in South Africa was Indian Opinion. First Indian to receive Magsaysay award was Vinoba Bhave. Biogas is a mixture of. अब थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चंस करना.
CH4 तो उसमें होता ही होता है, CO2 भी होता ही होता है। तो ये दो ऑप्शन तो देख लो कहाँ कहाँ है। CH4CO2 ए ऑप्शन में है, CH4CO2 इसमें नहीं है, CH4CO2 इसमें नहीं है। तो ए और डी में से मेरा करेक्ट आंसर होना है। नाउ यू शुड नो दैट बायोगैस ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ H2S, सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक्स इज। अब जो आयोग ने उस टाइम पे इसका आंसर दिया था दैट वाज ऑप्शन बी, पोटेशियम पर मैंगनीट। बट लेट मी टेल यू द ऑक्सीडेंट विच इज यूज्ड इन matchsticks, manufacture of matchsticks is potassium chlorate, KClO3. But yes, you should keep in mind that ये question अगर आता है and this option is given, so you should take potassium permanganate. Which of the following is used in making bulletproof substances? This is polycarbonates and एक बहुत important substance use होता है which is Kevlar. अगर ये एक option होता तो then you should have ticked on this also. Polycarbonates are also used, so this is also the correct answer, which is option A. Free from impurities, this is distilled water. Rainbow revolution is related to agriculture development. Not located on the golden triangle quadrilateral of national highways of India, this is Kanyakumari. Reference date of census 2011 was, this is 1st March 2011. मैं एक आपको important point बता रहा हूँ, census 2011 से, बी इट सेंसस ऑफ इंडिया और बी इट सेंसस ऑफ उत्तराखंड, इन दोनों से आपका मिनिमम एक एक क्वेश्चन तो आएगा। हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन भी आ जाएं, बट एक एक क्वेश्चन दोनों सेंसस से ज़रूर आएगा। तो दोनों सेंसस, उत्तराखंड का भी और इंडिया का भी, आप अच्छे से कवर करके जाएं अपने जीएस पेपर में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आधा आधा घंटे लगेगा दोनों में, एंड 2 क्वेश्चन आप इजीली, या मोर देन 2 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे क्रैक। Himalaya mountain protects India from the north cold winds in western winter season. Absolutely correct. Is the highest and youngest fold mountain of the world, which is absolutely correct. So both are correct. Option A is the correct answer. Next question is your question number 55. Mercury messenger, absolutely correct. Jupiter Voyager, absolutely correct. Mars Mariner, no. Venus Venera 4, this is absolutely correct. Mars का Mariner नहीं है. Mariner was again for Mercury and Venus. बट मार्स में आपको एक पता होना चाहिए, जो नासा का मिशन चल रहा है मार्स का कौन सा है, परसिवरेंस रोवर। दिस इज़ वेरी मच इन न्यूज़। मार्स पे परसिवरेंस रोवर ऑफ नासा, इट हैज़ ब्रॉट सेवरल सैम्पल्स फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज डेटम लाइन के बारे में क्या करेक्ट है पूछा है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ्स आर मेजर्ड, ऑप्शन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? प्रेरीज रशिया, नो. प्रेरीज आर सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, दिस इज सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, दीज आर ग्रासलैंड्स विच आर सिचुएटेड इन सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, ऑल राइट. गीजर ऑस्ट्रेलिया, एब्सोल्युटली करेक्ट. पैम्पर्स कनाडा, नो, कनाडा में नहीं है. पैम्पास आर इन योर साउथ अमेरिका. वेल्स सेंट्रल एशिया, नो. वेल्स आर इन योर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में आपके वेल्स. तो जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज ऑप्शन बी, विच इज गीजर इन ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट ही पूछा था, आंसर वुड बी ऑप्शन बी. फ्लोटिंग आइलैंड्स आर लोकटक लेक इन विथ स्टेट? मणिपुर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे इज रिलेटेड विथ पीर पंजाल रेंज. ऐसे ही पूछ लेगा अटल टनल, बिकॉज दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 3 years ago. अटल टनल, अगेन द आंसर वुड बी पीर पंजाल रेंजेस. ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, इट इज लोकेटेड इन योर जर्मनी, ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? अब देखिए थोड़ा सा इन डेप्थ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपने कभी पढ़ी होगी 6th 7th 8th 9th 10th में, तो आपको थोड़ा याद होगा. द न्यूमरेटर ऑफ RF इज ऑलवेज 1. येस, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऐसा लिखा जाता है 1:20,000 या 1:20 लाख, तो ये हमेशा होता है 1. Denominator of RF is in the same unit of length, which is absolutely correct. Though through RF the scale can be converted in any other unit of length, this is correct. The graphical scale cannot be constructed. No, it can be constructed. So not correct पूछा था, तो answer would be D. Distance between A and B is represented on the map denoting RF 1:20 lakh by 15 centimeter. Actual distance between the places, अब देखो 1:, कितना दे रखा है, 20 लाख, ठीक है. 1:20 लाख, अब सेंटीमीटर में दे रखा है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लाख सेंटीमीटर, मतलब आपका 20,000 मीटर. 20,000 मीटर मतलब आपका 20 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर. अब लगा लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हमने डिराइव कर लिया 20 किलोमीटर. 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 इंटू 20 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर. तो हो गया, आपका आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स पास इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? दिस इज शिपकीला, वेरी मच इंपॉर्टेंट. शिपकीला इज सिचुएटेड इन योर सतलज वैली, सतलज वैली इन हिमाचल प्रदेश. भुवन इज अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, मैं आपको करेक्ट ऑर्डर बता दे रहा हूँ, यू शुड रिमेंबर दिस. सबसे बड़ा आपका एशिया है, देन आता है आपका अफ्रीका, ऑलराइट. अफ्रीका बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ योर
ऑस्ट्रेलिया. दिस सीक्वेंस यू शुड कीप इन माइंड. एशिया के बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. इन सभी कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा तो होगा ऑस्ट्रेलिया, तो लास्ट में आएगा 3 एंड आपका क्वेश्चन हो गया, विच इज़ गॉन. 1, 4, 2, 3. अगर आपको ये भी पता था स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर डन. साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, यू आर डन. अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ऑस्ट्रेलिया आपका लास्ट है, मतलब एज इन द स्मॉलेस्ट है, तो आपको कुछ और पता करने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ MCQ क्वेश्चंस, एंड यू कैन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक्स लाइक दिस. इन विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य लोकेटेड? दिस इज इन पाटलिपुत्र, विच इज ऑप्शन बी. In all the canal irrigated as North India, waterlogging is a serious problem. That is true. Waterlogging is a major issue in North India over irrigation. The Indira Gandhi Canal Command area is a recent example in which waterlogging is progressively becoming a serious menace to the agricultural land. This is true. Answer is option A. Flame of the forest. This is Palash. Altitudinal zone of Uttarakhand contains maximum forest cover. This is 2000 to 3000 meter. Which of the following statements about the rivers एंड द गिवन कोड्स आर करेक्ट? देख लेते हैं एक बार. टोन्स, यमुना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रिब्यूटरी है. भिलंगना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. भागीरथी आपकी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर. भिलंगना कहाँ से निकलती है आपकी? खतलिंग ग्लेशियर, विच इज लोकेटेड इन योर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. पिंडर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. नो, पिंडर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. पिंडर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा. अलकनंदा. मंदाकिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मंदाकिनी आपकी कहाँ मिलती है? अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में मिलती है. पंचप्रयाग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड कीप इन माइंड. कौन सी नदी कौन से प्रयाग में मिलती है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ये गलत है, 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग. सो दीज ऑप्शंस आर गॉन एंड करेक्ट आंसर हमें देखना था. विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो योर आंसर हेयर as per the options would be option B. All right, but again as I said, Pindar is not a tributary of Ganga, so accordingly अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो you should answer accordingly. अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पूछा है, it was a current affair at that time, so I am skipping this. Moving on to the next question, question number 72. बांदीपुर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स एंड स्टेट्स आर गिवन. बांदीपुर सबको पता होता है, वेरी मच इन न्यूज़. कर्नाटका में A मैचेस टू 2. यार A and D ऑप्शंस आर गॉन. नाउ यू सी दुधवा इज इन उत्तर प्रदेश, B मैचेस टू 1. तो बस हो गया, आंसर इज ऑप्शन B. नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. हेलोन गैस, यस. फायर एक्सटिंग्विशर, पॉलीथीन, आर्टिफिशियल फाइबर. ईस्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट. नायलॉन इज अ नेचुरल फाइबर. नो, दिस इज नॉट करेक्ट यार. दिस इज नॉट करेक्ट. Polythene is a natural artificial fiber. Halon gas, the fire extinguisher. No, that yeast is a carbohydrate. This is your correct answer, which is correctly matched. So your correct answer would be option C. Correct पूछा था. All the options A, B, D are wrong, and your yeast is the correct answer. Moving on to the next question. Richter scale is used for measuring. It is used for measuring the intensity of earthquake. Next is minerals are given and their usage in different industries is given. Uranium सबको पता होता है रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होगा. B मैचेस टू 4. A and B ऑप्शन आपके गए. नाउ लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री, D मैचेस टू 3. हो गया, आपका आंसर वुड बी ऑप्शन C. ऑर्डर ऑफ सक्सेशन सबसे आपको देखना है इसमें. डॉक्टर S राधाकृष्णन सबसे पहले थे, तो 2 मैच सबसे पहले 2 आएगा, तो C एंड B चले गए. देन 2 के बाद आएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद एंड VV गिरी. दीज आर ड्यूरिंग द 1970s. इसके बाद आएगा 2 के बाद आएगा 1. एक ही ऑप्शन ऐसा है, सो यार आंसर वुड बी ऑप्शन B. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. चाइनामैन इज रिलेटेड टू क्रिकेट. वो वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन. देखिए उस टाइम पे करंट अफेयर्स था, बट लेट मी टेल यू, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स 2023 एंड फ्रेंच ओपन जो अभी हो चुका है 2023, ये जीता है आपका सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने. ठीक है, नोवाक जोकोविक ने ये दोनों टाइटल्स जीते हैं अभी तक, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन, जो 2 ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं. वुमेन सिंगल्स किसने जीता दोनों का, ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ग्रैंड स्लैम पे एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं. अगेन सचिन तेंदुलकर ने कहाँ 100 टेस्ट मैच खेला. आई एम स्किपिंग दिस, मे बी दैट वाज अ करंट अफेयर एट दैट टाइम. फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ British Parliament, this was Dada Bhai Nauroji, and he served as a member of Parliament from 1892 to 95 from Finsbury Central Constituency of England, right? एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, एक पेपर में पूछा था, शायद AE का ही वो पेपर था 2021 का. राष्ट्रगोफ्तार वॉज अ पीरियोडिकल
and who was the person associated with it? Then again it was Dadabhai Naoroji. 1866 में East India Association was founded by whom? It was founded by Dadabhai Naoroji. So he is a very important person when it comes to the freedom struggle of our country India. Who was elected as the chairperson of IMF? Again a current affair. I am skipping this. Histology is associated with the study of tissues. टेम्पल्टन प्राइज आई एम स्किपिंग दिस, बट ये जो 81 और 83 क्वेश्चन है इनसे एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस ड्रॉ मैं कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, ये आपको करके जाने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिसेंट में जो हुए हैं पिछले 6-7 महीनों में. प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज, ऐसे जो मेजर प्राइज हैं, एंड देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ नोबल प्राइज किसको मिला है 2023 में डिफरेंट फील्ड्स में. ये क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी 8 2023 के जनरल स्टडीज़ पेपर में आ जाए. मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपने डिफरेंट फील्ड्स में जिन को नोबल प्राइज़ मिला है आपके वो नाम डाल दिए हैं, एंड किस फील्ड में मिला है वो भी डाल दिए. सो यू शुड बेटर ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल. मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड यू शुड रिमेंबर ऑल द पर्सन्स हु हैव बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज़. ठीक है. Moving on to the next question, on the occasion of which mathematician's birthday Prime Minister declared the year 2012 as National Mathematics Year? This is Srinivasa Ramanujan. ELISA test is detected for AIDS, advantages of using IC, integrated circuits, all of the above, which is option D. Moving on to the next question, technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as pulse code modulation. Part of which number is used in binary system? This is 2, very basic question. Next question is question number 89. What difference do the 5th generation computers have from old generation computers? Technological advancement. Device designed to read optic information encoded in a small plastic card is your badge reader, which is option B. Binary numbers need more places for counting because binary base is small. Which language was devised by D.G. Bobrow, F. Fusig, Seymour Papert, and C. Solomon? This is your logo, which is option D. Time required for fetching and execution of one simple machine instruction is CPU cycle, which is option B. An optical input device that interprets pencil marks on paper is optical mark recognition, which is your OMR. Next is the complete picture of data stored in database is known as schema, and this language SQL is the language which is your used to frame databases, and the full form of SQL is structured query language, which you should also remember. कई बार पूछ लेता है different full forms कंप्यूटर से रिलेटेड. URL पूछ लेगा, USB पूछेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ISP पूछ लेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. रैम रोम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नहीं है. देन पूछ लेगा प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर यूपीएससी कॉन्टिन्यूसली आस्क्स क्वेश्चंस. Who was honored? Up next question 96 is which part of computer system interprets program instructions and initiates control operations? This is control unit, option D. Who was honored with Dada Saheb Phalke Award for the year? मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ. फॉर द ईयर 2020 ये मिला था आपका 2022 में अवार्ड हुआ था, मतलब रिसेंट दादा साहेब फाल्के किसको मिला था, एंड दिस वाज अवॉर्डेड टू आशा पारेख जी. इनको ये मिला था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. 2020 का ये अवार्ड था बट मिला 2022 में अराउंड सितंबर अक्टूबर. तो एंड दिस वाज अवॉर्डेड टू आशा पारेख, द रीसेंट दादा साहेब फाल्के. परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमोसफेयर, दिस इज 0.03%. स्लोगन ऑफ कॉमनवेल्थ 2010, ये तो पुराना हो चुका है, बट लेट मी टेल यू द रीसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स विच कंक्लूडेड दे वर हेल्ड इन बर्मिंगम. आपको पता होना चाहिए बर्मिंगम में हुए थे. व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? दे आर सपोज टू बी हेल्ड इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो दिस लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ 2024 के जो ओलंपिक्स होने वो कहाँ होने. इससे पहले वाले आपके टोक्यो में हुए थे, जापान में. 2024 ओलंपिक्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस. In which reign of the Mughal ruler the Ramcharitmanas was written? It was written during the reign of Emperor Akbar. Alright, so with that we come to the end of our discussion of General Studies paper of AE 2012. Hope you liked it. Do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. Another important thing which I want you to know is that you cannot afford to miss Uttarakhand GK because अभी recent के पेपर में जो हुआ था 2021 में 14 questions were asked from it. So there is very less time, and if you want to cover it, you can cover it from our book. The name of the big book is Mission Uttarakhand 3300 plus. The link for which I am attaching in the description of this video. So you can go through that book and very quickly take a quick glance जिससे आप maximum questions सही करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ इस ए की साइकिल में. ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग.